Hello class. Today in this lecture we shall talk about one of the important topics in statics that we apply in education. And the topic is named measures of position, percentile and percentile rank. Before we discuss the topic, before we come to the very core issue of the topic, first and foremost, I would like to tell you that we need to understand that there is a difference between the scales of measurement that we use in social sciences like education, psychology, sociology, and the scales of measurement that we use in physical sciences or hardcore sciences like mathematics, physics, and others. And the difference is of absolute zero, जिसे हम true zero भी कहते हैं. What happens that the role of absolute zero, or we can say that the very concept of absolute zero is highly neglected in social sciences like education, psychology or other social sciences. इसका रीज़न क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी, सो इसमें क्या होगा कि हम IQ टेस्ट करते हैं. नाउ IQ टेस्ट का स्कोर किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, बट इट कैन नॉट बी ज़ीरो. सिमिलरली वी हैव एप्टीट्यूड टेस्ट, वी हैव अचीवमेंट टेस्ट, एंड वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्ट्स. पर्सनालिटी टेस्ट फॉर एग्जाम्पल that we use in social sciences, and there we cannot get the answer in zero. तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो का अभाव होता है. कहाँ पर? सोशल साइंसेस में. एंड ऑन द अदर हैंड the absolute zero, which actually implies the starting point of the measurement, it is highly used in physical sciences. तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि सोशल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस में जो हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स यूज़ करते हैं वहाँ पे द मेन डिफरेंस इज ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो. और हम देखते हैं टू व्हाट एक्सटेंट द role of absolute zero is. See, अब यहाँ पे हम देखते हैं. For example, we are a teacher, we administer an achievement test and one of the students get 60, means score 60 marks. In the very same test, in the very same class, another student he scores 30. एक को 60 मार्क्स मिलते हैं और एक को 30 मार्क्स मिलते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी कैनॉट से दैट द स्टूडेंट हु स्कोर्ड 60 और 60 स्कोर इज जस्ट ट्वाइस द स्कोर ऑफ 30. यहाँ पे आप ध्यान देंगे 30 60 का हाफ है व्हेन इट कम्स टू इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट स्कोर, और 60 इज द ट्वाइस of 30 again when it comes to the achievement score. ये बात हम नहीं कह सकते. हम क्यों नहीं कह सकते? I am just explaining you. And on the other hand, when we talk about the physical sciences, हमारे पास measurements हैं. हमने एक rod को measure किया that is of 5 meters. Now it is quite obvious that 2.5 meters is half 5 meters. 2.5 5 का हाफ है और 5 2.5 का 2 गुना है. यहाँ पर हम कह सकते हैं बिकॉज हेयर वी आर डीलिंग विद एब्सोल्यूट ज़ीरो, बट व्हेन इट कम्स टू द स्कोर हम यहाँ पे अचीवमेंट स्कोर 60 को अचीवमेंट स्कोर 30 का हाफ और 30 से डबल और 30 को 60 का हाफ हम नहीं कह सकते until and unless we get the answers of certain questions. And what these questions may be? Whether the student got the highest score in his class, क्या उसका 60 मार्क्स और स्कोर वो हाईएस्ट मार्क्स है क्लास में. हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर देन हिज स्कोर, कितने बच्चे क्लास में ऐसे थे जिन्हें उससे ज़्यादा मार्क्स मिला, या फिर कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्कोर उसके मार्क्स से कम किया.
So until and unless we get the answers to these questions, we cannot say that achievement score 60 is twice the achievement score 30 or achievement score 30 is half the achievement score 60. अब हम आते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि टर्म जो हमारा परसेंटाइल है इसकी मीनिंग क्या होती है. What is the meaning of the term percentile? So percentile is nothing but a sort of measure used to indicate the relative position of a single item or an individual with reference to the group to which it belongs. एक ग्रुप में बहुत सारे आइटम्स या इंडिविजुअल्स हैं, तो परसेंटाइल शो करता है एक इंडिविजुअल की रिलेटिव पोजीशन व्हेन इट कम्स टू इन रिगार्ड टू द ग्रुप जिसका कि वो हिस्सा है, इन रिगार्ड टू द ग्रुप दैट ही और शी एक्चुअली बिलोंग्स. परसेंटाइल टर्म को आप बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप इसको कंपेयर करें विद मीडियन. यहाँ पे वो लोग जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देंगे दैट मीडियन इज एक्चुअली अ स्कोर बिलो एंड अबव विच 50% of the cases or the population lie. Similarly, what happens that percentile, the way median, it divides the whole population into two, 50% below and 50% above. Similarly, percentiles, the score series is divided into 100 equal parts. And each point or each part is referred as centile. इसको हम centile भी कहते हैं और more commonly we call it percentile. हमारे पास ऐसे और भी concepts हैं like quartiles that divides a population into 4 equal parts. Similarly, we have deciles that divides the whole population into 10 equal parts. अब इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम. सो अ परसेंटाइल इज अ पॉइंट ऑन द स्कोर स्केल बिलो विच अ गिवन परसेंट ऑफ द केसेस लाई. बहुत सिंपल सी बात है. अगर हमने 15th परसेंटाइल कहा दैट मीन्स दैट द स्कोर बिलो विच यानी कि इसके नीचे 15% ऑफ द केसेस लाई करते हैं एंड अबव विच 100 minus 15 that means 85. तो 15th परसेंटाइल का मतलब है कि इसके नीचे 15% केसेस लाई कर रहे हैं और अबव इसके ऊपर 85% ऑफ द केसेस लाए. अब यहां पे हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल. सी P is equal to L प्लस Pn by 100 minus F और इन सब का by small f multiplied by I. अब यहां पर हम देख लेते हैं that L is the lower limit of the percentile class in which Nk upon 100 lies. इसको हम आगे समझेंगे एग्जाम्पल में कि इसका मतलब क्या है. F frequency of percentile class, N is the total number of score and P जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं F stands for cumulative frequency below to percentile class. एग्जाम्पल देख लेते हैं. हमारे पास एक सीरीज दी हुई है एंड व्हाट वी आर सपोज टू डू वी हैव टू कंप्यूट 25th परसेंटाइल. अब यहां पे आप देख लेते हैं यहां पे इसको कि जहां पे हमारा ये जहां पर ये हमारा 25th परसेंटाइल लाई कर रहा है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी 9 है, फ्रीक्वेंसी इसकी 4 है और जो स्कोर इंटरवल्स हैं दैट इज 20 एंड 29. एन आप देख पा रहे हैं कि एन हमारा 24 है. अब देखिए इसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं. मैंने आपको बताया कि हम एन के बाय 100 हमने निकाल लिया. इसमें एन के की वैल्यू पुट करके एन 24, के 25,
answer is 6. And then percentile P is equal to L plus Pn by 100 minus F whole by small f into I, that means class interval. आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इन सब की वैल्यू प्लेस कर देनी है and you will get the answer that the value of 25th percentile is 22. अब आगे प्रोसीड करते हैं और हम देखते हैं what it means when we say percentile rank. अब यहाँ पर समझिए, let's assume that there is a class of 50 students. रमेश जो कि उस क्लास का एक छात्र है, उसने 60 स्कोर किया हुआ है on an achievement test and there are 40 other students whose scores fall below 60. 40 और बच्चे हैं जिनके स्कोर उससे कम हैं. In other words, 40 out of 50, that means 80% of the students lie below 60, scored by Ramesh. Now, this illustration जो हमने बात की यहाँ पे, it can well be translated into statistical language by saying that the achievement score of 60 attained by Ramesh has a percentile rank of 80. अब इसको हम डिफाइन करते हैं. When it comes to defining the percentile rank, then the term can easily be defined as the number representing the percentage of the total number of cases lying below the given score. यानी कि ये हमारा एक नंबर है जो वो रिप्रेजेंट करता है कि उस नंबर के नीचे कितने परसेंटेज, कितने केसेस हमारे पास हैं. अब हम इसे कैसे कंप्यूट करेंगे? पहले हम बात कर लेते हैं कि अनग्रुप्ड डेटा में हम इसको कैसे करते हैं कंप्यूट. बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, PR दैट मीन्स परसेंटाइल रैंक 100 ब्रैकेटेड RA माइनस 50 बाई N और RD माइनस 50 बाई N. व्हाट इज RA? RA is the rank position in ascending order and RD is the rank position in descending order. अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी क्वेश्चन हमारे पास होगा उसकी वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले में प्लेस कर देनी है, पुट कर देनी है एंड विल गेट द आंसर. सी, यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज दे रखी है, फाइंड आउट द PR दैट मीन्स परसेंटाइल रैंक ऑफ द स्कोर 17 और ये हमारे पास 20 स्कोर्स या 20 स्टूडेंट्स के स्कोर दिए हुए हैं. हमने स्कोर्स को लगा दिया इन अ रैंक ऑर्डर और उसके बाद बहुत ही सिंपली जाके फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी सीरीज में दिया हुआ है, हमें आंसर चाहिए स्कोर 17 का, ठीक है. और 17 स्कोर पे आप देख पाएंगे कि 17 स्कोर पे जो रैंक ऑर्डर है वो 14 है. तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, इनको हमने इन वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूले में प्लेस किया और उसके बाद ये कैलकुलेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट दैट द परसेंटाइल रैंक ऑफ द स्कोर 17 इज 32. फॉर ग्रुप्ड डेटा, अगर हमारा डेटा ग्रुप्ड है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, PR इज इक्वल टू 100 बाई N द होल ब्रैकेटेड F प्लस स्मॉल ब्रैकेटेड X माइनस L बाई I ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाइड बाई F एंड द होल ब्रैकेटेड क्लोज. यहाँ पे X is the raw score of which percentile rank has to be calculated. L denotes lower limit. I is the class interval. F is the frequency of the class, small f, and capital F is cumulative frequency of below class. यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है द परसेंटाइल रैंक ऑफ 22. आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो स्कोर्स हैं 22 विल लाई समवेयर इन द क्लास इंटरवल्स ऑफ 20 एंड 29, जिसकी फ्रीक्वेंसी इज 5 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 9. टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट मीन्स n इज 24. अगेन इन सारी वैल्यूज को आप फॉर्मूला में प्लेस करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर दैट द परसेंटाइल रैंक ऑफ स्कोर 22 इज 25. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द यूटिलिटी? सो इट इंडिकेट्स
द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी ग्रुप में एक इंडिविजुअल की, एक आइटम की रिलेटिव पोजीशन क्या है इन रिगार्ड टू द ग्रुप इन विच ही इज। इसको हम इंडिकेट करते हैं, इसको हम फाइंड आउट करते हैं थ्रू दिस परसेंटाइल रैंक एंड परसेंटाइल। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कंपेयर द एट्रीब्यूट्स and to test the performance of an individual under 2 or more testing conditions. So this is the significance and utility of percentile and percentile rank. Whatever the thing we discussed, here is the reference of a book from which I extracted out these materials. अब आप इसको आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यू कैन वेरी इजली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।